Hi and welcome to India's number one construction podcast, BuildMate Podcast. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट की. हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ योर हाउस टू बी फ्री ऑफ टर्माइट्स. जिन जिन लोगों ने टर्माइट्स की प्रॉब्लम फेस की अपने घरों में, जिनके घर में दीमक निकली है, उन्हें पता होगा कि इसका दर्द कितना होता है. And when you see the wood in your house crumbling because of termites, the clothes in your wardrobes getting damaged because of termites, and things getting spoiled, it's not just an economic loss, it is also a personal damage to our mental health. क्योंकि termites का घुस जाना एक इंडिकेशन है कि अब आपके henceforth का फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी विद टर्माइट्स. टर्माइट्स जल्दी से जाते नहीं हैं एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन से, एंड इट बिकम्स अ ह्यूज चैलेंज टू एलिमिनेट टर्माइट्स फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड्स. We, with Mr. Ravi Vyas, who's our guest, we have spoken about termites in new construction, कि नए कंस्ट्रक्शन के समय पर आपको कैसे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराना है. वी हैव स्पोकन अबाउट एग्जिस्टिंग होम्स जिनके अंदर टर्माइट्स निकल आई हैं, उनके लिए क्या हम रेमेडीज़ कर सकते हैं. हमने बात की है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, हमने कुछ ब्रांड्स भी डिस्कस किए हैं. वी हैव ही हैज़ इन फैक्ट गिवन अस सम स्टोरीज अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन द पास्ट, जहाँ पर कुछ स्ट्रेंज और कुछ अद्भुत से एक्सपीरियंसेस उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं. मिस्टर रवि व्यास इज़ एन एंटोमोलॉजिस्ट, मतलब ही इज़ डन हिज मास्टर्स इन एंटोमोलॉजी विच इज़ अ स्टडी of insects. So he understands the behavior of these pests and these insects. He has been running this business, his family business, for more than 50 years. He joined the family business back in 1985. So he's been doing this for 39 years now, which will complete in January 2024. He is also a master trainer in the Pradhan Mantri Yojana for training individuals in pest control. वो एक मास्टर ट्रेनर हैं उसके अंदर. He has also been the president of IPCA, which is the Indian Pest Control Association. So काफ़ी knowledgeable इंसान है पेस्ट कंट्रोल या एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो आज हमने कवर किया उनके साथ. उसके बहुत सारे नुआंसेस और बहुत सारी डिटेल में आपको नॉलेज मिलेगी. मैं उनकी डिटेल्स वीडियो के फुटर में शेयर कर दूंगा आपके साथ, so that if you want to contact him or his agency, you can always do that. He's doing a lot of work with big giants as well, and he does small jobs as well. So he'll be a good asset for you if you are facing a problem with termites in your home. So yeah, tune in, watch the entire episode. If you have any queries, then write to us at buildmatepodcast@gmail.com. मेरे इंस्टाग्राम के अंदर एक व्हाट्सएप नंबर भी अब आपको दिखेगा, so you can always text me directly. And by the way, that text reaches me directly. So career text. I would love to hear your views and your opinions through you directly. You can follow me on Instagram at BuildMate Podcast, और हमारा YouTube चैनल जो है उसका भी नाम BuildMate Podcast है. Spotify पर भी हम BuildMate Podcast के सर्च से मिल जाएंगे. We are now on Threads and on LinkedIn as well. So go ahead, find us there, contact us, reach out to me, say hello. I would love to say hello back to you. So go ahead, watch this episode. I hope you enjoy it. Hi and welcome to India's number one construction podcast, BuildMate Podcast. आज मेरे साथ मिस्टर रवि व्यास हैं जो he is a masters in entomology. Entomology क्या होती है? It is a study of insects, and he's done that from Punjab Agricultural University in Ludhiana, which is one of the top 2 universities for the same study in our country. He is a past president of the IPCA, which is the Indian Pest Control Association. And he has done various prestigious projects for pest control and anti-termite treatment across the nation. He is also a master trainer at the PM Skill Development Center, जो सरकार की एक स्कीम है for developing skills in different areas. So he is a master trainer for pest control. रवि सर, थैंक यू फॉर कमिंग अराउंड. आज आपने एक बहुत बिजी दिन स्पेशली टाइम निकाला है हमारे लिए, सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर कमिंग अराउंड. सर, एंटोमोलॉजी की स्टडी आपने जो की है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. थोड़ा सा उसके बारे में आप हमें बताओ कि व्हाट ऑल डज इट इंटेल, एंड स्पेशली जो आप करते हो, जो आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, हाउ इज़ दैट स्टडी हेल्पिंग यू? ओके, सी ऋषभ, सबसे पहली बात, एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, दैट इज़ ट्रू, बट व्हाट आई हैव डन इज एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी,
The difference being that there are about 2.5 million species of insects all over the world, out of which very few are the ones which are, hazardous or dangerous for us. Most of them, the insects are very beneficial also. Honey bees को आप जानते ही हैं, lac insect जानते हैं. So all these are beneficial, but there are then all the pollination that takes place, that is due to the insects only. Exactly. But there are certain insects which cause damage to human health or economic damage to us. These are the insects which we study when we are talking about agriculture entomology. So this is how I did my graduation in agriculture, and after that into agriculture entomology. And again, in that also we have crop pests, and then we have urban pests. अब urban pests वो हैं जो कि हम लोग अपने घरों में, अपने आसपास में देखते हैं, किसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में देखेंगे, किसी बिल्डिंग के अंदर देखेंगे, कारपेट्स के अंदर देखेंगे. फिर यही अगर आप क्रॉप पेस्ट की बात करें तो आप फसलों में जो कीड़े लगते हैं उसके बारे में बात करें. तो हम फसलों के कीड़े की बात यहाँ नहीं करते हैं. व्हाट वी डू इन आवर प्रोफेशनल कैपेसिटी इज कंट्रोलिंग अर्बन पेस्ट्स. और हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो मेरा सीधा दारोमदार आ जाता है बिल्डिंग्स के ऊपर. ओके. घरों में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हो, इंडिविजुअल होम्स हो, अपार्टमेंट्स हो, भले ही नया बना हुआ हो, भले ही पुराना बना हुआ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है दीमक की. सर, दीमक यानी टर्माइट क्या होता है, किस तरीके का कीड़ा होता है, और हमारे बिल्डिंग्स में क्यों आ जाता है? देखिए, क्यों आ जाता है, इसलिए क्योंकि आपने उसकी जगह ले ली है. सच बात तो ये है. दीमक एक ऐसा कीड़ा है जो कि सॉइल के अंदर रहता है. सॉइल के अंदर उसकी कॉलोनीज होती हैं. यदि आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हो तो उसके अंदर देखा होगा, उसमें क्वीन होती है, वर्कर्स होते हैं. तो इसी तरह से again you have colonies of termites inside the soil at various depths depending on the species of the termites, and you will have queens, one queen in a colony, then you will have soldiers which will defend the colony, then you have workers which go out and they get the food for the colony. तो जो आप और हम जो दीमक देखते हैं, जो कीड़े देखते हैं दीमक के, वो नॉर्मली वर्कर्स होते हैं, and they are far more in numbers in a colony as compared to the soldiers. And they can be, in a single colony you can have about 1 million workers also. Okay. और आप कह रहे हो कि हमने इनकी जगह ले ली, वो कैसे? देखिए, ऐसा है, आप अगर आपने देखा हो आज से 50 साल 60 साल पहले जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, इसमें ज़्यादातर खेत हुआ करते थे. बिल्कुल. ठीक है, खेत पेड़ ये सब हुआ करते थे. तो दीमक उस ज़माने में उनकी जड़ों पे फीड करती थी और उसको खाना मिलता था. आप अपनी खेती भी कर लेते थे, अपने आप को बचाते हुए थोड़ा केमिकल डाल दिया ताकि फसल भी उग जाए, और एट द सेम टाइम उसको भी खाना मिल जाता था. आपने धीरे धीरे करके वो सारे खेत काट दिए, वो सारी फसलें हटा दी और उसकी जगह पे मकान खड़े कर दिए. अब जब आपने मकान खड़े किए तो वो कॉलोनी नीचे जो बनी हुई है वो तो तब वैसे की वैसे रही, लेकिन अब उसके पास में खाना नहीं है. तब वो क्या करेगी? इट विल अगेन गो आउट इन सर्च ऑफ फूड. और ये एक और चीज़ आपको मैं चलते हुए बता देता हूँ. आप जो वर्कर्स देखते हैं, नंबर 1, ये ब्लाइंड होते हैं. दे कैन नॉट सी एनीथिंग. द इंसेक्ट, वर्कर टर्माइट्स आर ब्लाइंड and they are sterile as well. Okay. They cannot multiply, but they are foraging in nature. हमारे लिए foraging का मतलब ये होता है anything which goes out in search of food. Yes. And it is blind. तो वो चलती जाएगी जब तक कि उसको कहीं पे खाना ना मिले, फूड सोर्स ना मिले. अब फूड सोर्स क्या होता है ये आपको बताता हूँ. फूड सोर्स इनका होता है सेलुलोज बेस्ड प्रोडक्ट. ओके. एनीथिंग विच इज रिच इन सेलुलोज विल बी अवर फूड फॉर टर्माइट्स. उसमें 3 मेजर चीज़ें जो आती हैं, वो एक है लकड़ी, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है कागज़. ये 3 चीज़ों को दीमक टोटली डिस्ट्रॉय कर सकती है. तो यू हैव कार्टन्स लाइंग अराउंड, दे विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड. यू हैव क्लोथ्स लाइंग अराउंड, दे विल बी डिस्ट्रॉयड. यू ऑफ कोर्स लकड़ी के बारे में आप जानते हैं कि वो ख़त्म हो जाती है. बिल्कुल. तो अब होता यही है कि ये घूमती रहती है जब तक कि इनको कोई ऐसा सोर्स ना मिल जाए. जहाँ पे ये सोर्स मिला, तो जिस तरह से आपने चींटियों को देखा होगा, अगर चींटी एक कोई टेढ़ा मेढ़ा चलेगी तो बाकी सारी उसी ट्रेल पे चलेगी. दे विल नॉट गो स्ट्रेट. सो दे लीव अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड फेरोमोन, which is the pheromone trail. So they will go on that trail only to that particular area
तो सारे वर्कर्स वहीं कन्वर्ज कर जाएंगे या फिर वहां से वो खाना लेके वापस कॉलोनी में जाते हैं. So that is how the entire circle goes, and that is why you see at times, आपने कभी देखा है किसी ये जो सड़क के बीच में डिवाइडर्स होते हैं, जी पत्थर जो लगे होते हैं, जी वहां पे भी दिमाग की एक लाइन लगी होती हाँ है, जी लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है खाने को. एग्जैक्टली वो फोरेजिंग नेचर है उसकी. वो वहां तक गई, उसने देखा कुछ नहीं मिला, विल गो बैक. इसी तरह से दीवार पे कई बार आप देखते हैं कि एक लाइन बनती है, काफ़ी दूर तक जाती है, उसके बाद में गायब हो जाती है, बिकॉज इट्स नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग, सो दैट रूट इज गॉन नाउ. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. interesting. That also tells me that the nature is very well studied and the knowledge of entomology is coming in for you to actually tell us about it a little bit more. But दीमक तो हमारी दो ही चीज़ों का दुश्मन है. एक फाइनेंशियल दुश्मन तो वो है ही, राइट, स्पेशली क्योंकि अब देखिए अर्बनाइजेशन को तो आप और हम नहीं रोक सकते, हमें लिविंग स्पेसेस चाहिए एंड विद टाइम वी विल कीप ऑन क्रिएटिंग मोर एंड मोर, राइट, एज द पॉपुलेशन ऑल्सो ग्रोज, एज नीड ग्रोज, इवन एक सेम साइज ऑफ फैमिली की नीड्स भी बढ़ जाती हैं थोड़े समय के साथ. डेवलपमेंट चलती रहेगी. नाउ दिस इज़ अ फाइनेंशियल दुश्मन. इकोनॉमिक डैमेज, हमारी लैंग्वेज में पेस्ट जो इकोनॉमिक डैमेज करता है, इकोनॉमिक डैमेज करता है हमें. Is it also unhealthy for us? No, sir. In any It does not. It does not. Spread any disease. It can be unhealthy in a way, which I'll tell you later. किस तरह से? But before that, I'd also like to tell you, termites हमारे लिए beneficial कैसे हैं? Please. So, in forest lands, termites help in turning over the soil. That turning over of the soil, it continues the fertility of the soil. तो अगर आप जंगलों में जाएंगे तो वहाँ पे दीमक जो है वो आपके लिए कुछ अच्छा काम करे, तभी वो जंगल इतने पनप रहे हैं. Okay. लेकिन यहाँ पर आकर हमें दिक्कत आती है. तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लिए पेस्ट है. रही बात आप अनहेल्दी का, तो एक कहानी सुनाता हूँ आपको. Please. दीमक, जैसा मैंने आपसे कहा कि ऊपर चढ़ जाती है और जाके, और उसको जहाँ पे ये मिलता है अपना लकड़ी का सोर्स मिलेगा, लकड़ी या कागज या कपड़ा मिलेगा, सेल्यूलोज का सोर्स मिलेगा, वहाँ पे जाएगी. जी. तो यही कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में गुरु नानक फाउंडेशन करके एक बिल्डिंग हुआ करती थी लॉन्ग टाइम बैक. तो वी वर knowing the owners, but we were not actually doing any treatment over there. We knew the architects also who were concerned with that. So one fine day we get a call from them कि आप immediately वहाँ पे जाइए, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है और किसी को चोट लग सकती है. चोट दीमक से तभी नहीं बनता. ऐसा सर वो, फिर मैंने उनसे सोचा क्यों मैं बोलूँ कुछ, मैं चला गया देखने के लिए. एंड ऋषभ, व्हाट हैज हैपेंड, वहाँ पर जो उनके डायरेक्टर थे, वो उनका अपना बड़ा कैबिन था अलग, और पूरी वॉल पैनलिंग लकड़ी की, फॉल्स मतलब वुडन फ्लोरिंग, फॉल्स सीलिंग लकड़ी की. ओके. अब हुआ ये है कि उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं किया, उसमें दीमक चलती रही और वो फॉल्स सीलिंग में पहुंच गई. और फॉल्स सीलिंग में, अब आपने जानते होंगे आपकी, वहाँ पे उसमें फ्रेमवर्क होता है. हाँ जी. तो वो फ्रेमवर्क को टोटली उसने ख़त्म कर दिया. जब वो फ्रेमवर्क ख़त्म हुआ तो वो सीलिंग नीचे गिरी. राइट. जब वो सीलिंग नीचे गिरी तो जो टेबल थी सामने, उसी के ऊपर आके नीचे गिरी. एंड ओल्ड मैन, ही वॉज लकी कि अगर वो थोड़ी सी 2 फीट और इधर गिरती तो प्रॉब्लम उनके सिर पे लग जाती. वहाँ पर वो अनहेल्दी हो गया. राइट. बट अदरवाइज यस, it doesn't spread any diseases or anything. Spread any diseases, and there are no emitting gases in it. So this is something which I have seen at least 4 or 5 times in a building where the ceilings have fallen because of termite damage. कंस्ट्रक्शन में हम तो दो ही एस्पेक्ट्स जानते हैं, एटलीस्ट मेरे तो दो ही एस्पेक्ट्स समझ में आते हैं. एक होता है न्यू बिल्ड, जहाँ नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, और एक है एग्जिस्टिंग सिस्टम. पहले मैं बात करना चाहता हूँ आपसे न्यू बिल्ड के टाइम पर. हम लोग जब शुरुआत कर रहे होते हैं, अपने घर की नींव डाल रहे होते हैं, या उससे पहले पहले बहुत पहले ऐसा भी किया जाता है, शायद नमक की थैलियाँ बिछाई जाती थी फॉर अर्थिंग, और चीज़ें होती थी पहले. फिर हम वाटर प्रूफिंग के लिए हम लोग कई तरीके के डिफरेंट मेथड्स अपनाते हैं, गुनाइटिंग से लेके केमिकल्स तक का सब तरीके का काम होता है. एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए नींव में क्या क्या काम करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट मेथड, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, थोड़ा सा आप प्लीज़ टेल अस अबाउट इट. ऋषभ, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक न्यू बिल्डिंग्स की बात करें तो देर आर सेट प्रोटोकॉल्स. BIS, the Bureau of Indian Standards, has a code for
pre-construction anti-termite treatment. That is BIS 6313 Part 2. Okay. And it is revised regularly. So we had the first initial edition had come in 1971, after that 1981. Then it again came in 2001, then 2013, and now we have the latest in 2022. Oh. So the reason for the revisions is the the new things which come up in construction technologies. So you have different kind of buildings all coming all over. So accordingly, your termite treatment also has to keep pace with that change in technologies. So the best practices are always getting your treatment done along with IS 6313 Part 2. Okay. Then it not only gives you the procedure जो कि आपको फॉलो करना है कौन कौन सी स्टेजेस में, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन का ट्रीटमेंट वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं होता है. इसके अंदर आप ट्रीटमेंट जो करते हैं वो एज द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेसेस आपका स्टेज वाइज ट्रीटमेंट होता है. Okay. और आइडिया इसमें ये होता है कि जो भी सॉयल आपकी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में आ रही है वो केमिकली ट्रीटेड होनी चाहिए. Okay. The idea again, we are creating a chemical barrier. We are not actually going out into the colony and killing the queen or something of that sort. We are not That doing. is not, And that is not possible. also. So what we do is to protect our structures, we make sure that the soil which is in contact with our buildings, Yes. that is chemically treated. Okay. Now for that there are various, since you have different kind of structures starting from a masonry foundation to a RCC frame structure to a what do you call it, RCC raft basement or a isolated footings or maybe pile foundation. For each one of these structures, the treatment, the details of the treatment has been very clearly mentioned in the code, BIS code. Second, they have also given you a list of 3 different insecticides which you can use, in what dosage you use it, what concentration you use it, everything has been mentioned. And these insecticides again are BIS certified. Okay. So they have their own BIS codes for that, for those insecticides. Right. तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बिल्डिंग का एंटी टर्माइट करना है तो सबसे बढ़िया तरीका यह है BIS कोड IS 6313 Part 2 2022 लेके आएँ, उसको फॉलो करें. प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में जानकारी बहुत कम है. जी. People do not know about the fact that there is a code for this, and if at all people know about it, they normally feel कि नहीं यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे दिक्कत है. किया हुआ है, इतनी परेशानी नहीं आती है. हाँ, एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ. कई जगहों पे क्या होता है, आप अपने मकान बना रहे हैं, आपको तो आइडिया नहीं है कि भाई दीमक का ट्रीटमेंट कंस्ट्रक्शन के वक्त हो सकता है. जी. अब आप ठेकेदार को बोलते हैं यार मैंने सुना है कि दवाई डालते हैं दीमक की, तो वो आपको कहता है सर मैं 5 लीटर का डब्बा ले आया हूँ और उसको ना मैंने फाउंडेशन में डाल दिया, पूरा नींव में पूरा डाल दिया, अब कोई ज़रूरत, अब कोई दीमक आएगी नहीं, कभी नहीं आती आपके यहाँ दीमक. लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जितनी भी सॉयल जो कि स्ट्रक्चर से कांटेक्ट में है उस सब सॉयल को हमें ट्रीट करना है. अब बिल्डिंग तो आपके ऊपर खड़ी होगी तो फिर सॉयल कांटेक्ट आएगा, फ्लोर के नीचे कांटेक्ट आएगा, जो आपकी वॉल्स ऊपर आ रही हैं उसके साथ में कांटेक्ट आएगा. तो वो सारी जगहों पे जब तक ट्रीटमेंट नहीं होता है, एक तरह से मैं क्या बोलूँ आपको, एक बैरियर बना रहे हैं आप. ठीक है, आपने एक बैरियर बनाया लेकिन उसमें 4 गैप छोड़ दिए बीच में, तो बैरियर का कोई मतलब ही नहीं रहा. बैरियर बेकार हो गया. घुसपैठिए तो घुस जाएंगे वही चीज़ उसमें. जी. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर बैरियर इज कंटिन्यूअस and uniformly spread. Then only you can expect a foolproof treatment. Okay. That is how it is. You mentioned different types of structures. आजकल तो ज़्यादातर फ्रेम स्ट्रक्चर ही बन रहा है. Correct. इनफैक्ट जहाँ भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन फॉलो हो रहा है प्रॉपर, तो वहाँ फ्रेम स्ट्रक्चर के बिना काम नहीं होता. इनफैक्ट रिटेनिंग वॉल्स भी पूरी कंक्रीट की बनती हैं और बाकायदा. कुछ 1-2 मेथड्स आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि वो लेयरिंग हम क्रिएट कैसे करते हैं? क्या हम कोई मेम्ब्रेन्स यूज़ कर रहे हैं, या हम कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं? Is there what sort of a technique usually, or one of the best practices, maybe if you can't tell all, आप 1 या 2 प्रैक्टिसेस मैं आपको 2 जो कॉमनली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बताऊँ. एक तो जैसा आपने कहा RCC फ्रेम स्ट्रक्चर. नाउ इन केस ऑफ RCC फ्रेम स्ट्रक्चर यू हैव अ कॉलम एट द बेस joined with RCC beams. तो उस केस में
as per BIS code, they say that you do not need to treat anything at the footing level. Okay. क्योंकि आपका जो कॉलम है उसको वो इट इज थिक इनफ, इट इज डेंस इनफ, Slab. द जो स्लैब, हमारा हाँ, नीचे भी, हाँ. इट इज डेंस इनफ टू आई मीन स्टॉप द टर्माइट्स, फिजिकल बैरियर बन जाता है Okay. वो, सो इट डजंट अलाउ टर्माइट्स. Okay. व्हाट यू डू इंस्टेड इज दैट जो आप फुटिंग के अंदर बाद में सॉइल डालते हैं, वंस द कॉलम इज बीन इरेक्टेड, वो सॉइल को आप ट्रीट करेंगे स्टार्टिंग एट अ डेप्थ ऑफ 500 फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, 500 mm फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. Okay. So that is the first treatment. Second is below the floor. Hmm. Now before laying the flooring, जितना आपका सॉइल है उसका आप कॉम्पैक्शन करते हैं, वाटरिंग करके Yes. कॉम्पैक्शन करते Yes. हैं, एंड व्हेन यू आर रेडी फॉर द PCC वर्क, दैट इज द टाइम व्हेन यू डू द ट्रीटमेंट. Hmm. इसमें एक गड़बड़ बड़ी कॉमन है, वो मैं आपको बता देता हूँ. हमने ट्रीटमेंट कर दिया, PCC डालने के वक्त उससे पहले ही ख्याल आया किसी को कि यार इसमें से तो बीच में से वो कंडुइट लाइन जा रही थी Hmm. या एक सैनिटरी लाइन जा रही थी. तो बाद में चेंजेस हो अब वो जहाँ गई तो वो आपने ट्रीटेड सॉइल हटाई, फिर नई आपने सॉइल डाल दी. अब वो बाहर से आ रही है, तो कंडुइट लाइन जो है वो बाहर से आ रही है, बाहर अनट्रीटेड सॉइल है, उसके साथ साथ में अंदर आ जाएगी. जी. तो कभी आपने देखा हो कि आप किसी वॉशरूम के अंदर जो ये पॉट होता है उसके पीछे जो वो लगा होता है, ये टैप लगा होता है या कुछ, उसके साथ में टर्माइट आ रही है. कोई सेंस नहीं है, वहाँ कोई लकड़ी नहीं है, नो सेलुलोज एट ऑल, but that is the root it has because of taken. the conduits. Similarly, you can see them coming along from the switchboards also. Yes. Now, switchboards when they come along, then they can be dangerous also for you, because जो हम insulation use करते हैं wiring का, they can damage that insulation. Right. So there are times when you see that the two wires do not have any insulation, वो touch करेंगे और short circuiting होगी. So it does happen at times. Yeah. आई हैव सीन इट. हमारे क्लाइंट्स कुछ ऐसे निकले हैं जिनके यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ चुकी है. Hmm. तो दिस इज वन डेंजरस थिंग विद दैट कैन हैपन. Yeah. तो इसलिए जब आपने ट्रीटमेंट किया उसके बाद में सॉइल वापस डिस्टर्ब नहीं हो सकती है, एंड यू हैव टू एंश्योर दैट. जब आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो, व्हाट आई एम गैदरिंग फ्रॉम इट इज इट यू क्रिएट अ लेयर ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ केमिकल और अ पेस्टिसाइड लेट्स से, एंड यू बेसिकली क्रिएट दैट लेयर, राइट? अब क्या उस लेयर के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर करने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर सीधा PCC होती है. सीधा PCC होती है. ओके, दैट इज द प्रोटेक्शन लेयर बेसिकली. See, the insecticide that is recommended for termite treatment has a certain life. If once you have applied it, it can either be a repellent, or there are other chemicals which are now non-repellent insecticide which have also come into Okay. market. वो chemical जो है आपका, वो एक either you can say it's a barrier or a chemically treated zone Yeah. which has been created. Okay. That is good enough for termites to stop, and they will not be, they will not be able to go up and damage anything. Okay. That is the idea. But is it a lifetime No sir, no proof sir. sort of thing? एक बात समझे, आप भी जानते हैं आजकल एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस कितनी ज़्यादा है. जी. तो एनीथिंग विच pollutes your environment is supposed to be, Yeah. sideline. Yes. तो लॉन्ग टाइम बैक, आई एम टॉकिंग अबाउट 1971, जो मैंने आपको बताया पहला कोड जो था, उसके उस टाइम पे जो केमिकल्स आते थे उसमें थे, उनको हम बोलते थे क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स. Yes. दोज वर द एग्जांपल्स वर एल्ड्रिन, हेप्टाक्लोरिन, क्लोरिडेन. ये 3 केमिकल्स ऐसे थे जो कि अगर आप सॉइल में एक बार ही डाल देते थे तो दे यूज टू रिमेन स्टेबल इन द सॉइल एंड इन ए पॉइजनस फॉर्म फॉर डिकेड्स टुगेदर. तो आपने एक बार ही एल्ड्रिन अगर डाल दिया है, so you can be sure that for 20-30 years you will not have any problem with termites. But they were also cancer causing. Hmm. They were also, polluting your soil water, underground water. Then they were also being used by the farmers for the same problem. अब क्योंकि फार्मर्स तो हर साल फसल उगाता है और हर साल फसल में भी 2 बार या 3 बार केमिकल डालता है. होता ये था कि फसलों के वो जो फार्म लैंड थी उसके अंदर वो केमिकल की जो क्वांटिटी थी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज वो डिग्रेड हो नहीं रहा था और हर फसल में 2 या 3 बार ही डलता था. तो देयर वाज अ टाइम, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, दैट द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली हैड द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BHC and DDT in their blood all over the world. This was because we were eating that food, that crop, which was contaminated by the insecticide.
So कोड रिवीजन में फिर वो चेंज हुए. वो सारे चेंज हुए. So now the chemicals that come, they have a certain life after which they disintegrate or degrade into simpler substances which are not toxic. तो ये this has to happen now. So you cannot say कि भाई हमने एक बार ही कर दिया जिंदगी भर के लिए हो गया. No, doesn't happen that way. क्या उस टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के बाद हमने इफेक्टिवनेस भी रिड्यूस कर ली थोड़ी सी? बिल्कुल. So the life of that treatment Life of that shortens. treatment shortens definitely. अब See, the life is dependent on the residual toxicity of the insecticide. राइट. जितने टाइम तक वो सॉइल के अंदर पॉइजन बन के रहेगा उतने टाइम तक वो आपको एक प्रोटेक्शन देगा. जब वो उसकी टॉक्सिसिटी खत्म हुई आपकी प्रोटेक्शन खत्म. बिल्कुल. सिंपल है दैट. ओके. यूजुअली एक टर्माइट एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट की लाइफ टाइम स्पेशली एट द फाउंडेशन लेवल जो हम बिल्डिंग बनाने की शुरुआत में कर रहे हैं कितनी रहती होगी आपकी? आज के आज के जो केमिकल्स हमारे पास में अवेलेबल है उसमें मैक्सिमम यू कैन एक्सपेक्ट इज फॉर 8 years. ओह. बस. Normally 5 to 8 years is what we say depending on what insecticide you are using, which is the kind of soil that is there. There's so many things to it. There are certain insecticides जो कि कोड में हैं हमारे, लेकिन अगर वो हम उसे यूज़ करते हैं, if there is a subsoil water movement, then they move along with the water. ओके. Your barrier is gone. जी. आप कहीं पे मान लीजिए कहीं पे आपने ट्रीटमेंट किया है और उसके अंदर वहाँ पे फ्लड्स आ गए. तो फिर दोबारा हो गया. पानी गया, पानी के साथ में वो चला Back गया. to zero. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सर सॉइल टाइप्स डिफरेंट टाइप्स की हैं, राइट? सम प्लेसेस यू हैव ब्लैक सॉइल, सम प्लेसेस यू हैव रेड सॉइल, सम प्लेसेस यू हैव सम. डू डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट टर्माइट इश्यूज? या ऐसा भी कुछ होता है कि किसी किसी टाइप ऑफ सॉइल में टर्माइट का प्रोपगेशन कम होता है या ज़्यादा होता है? ऐसा कुछ आपने कभी पाया है कहीं पर? टर्माइट का प्रोपगेशन हर जगह पे होता है. द स्पीशीज वेरी. ओके. So there are many species of termites. Okay. And the species will be there depending on the kind of soil that you have. ओके. फिर उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होता है. ट्रीटमेंट के लिए आपको इंसेक्टिसाइड वो यूज़ करना है. Dosage One thing changes which I have learnt over a period of time with my experience is that there is a chemical called chlorpyrifos which we have been using since almost 1990s से चल रहा है वो. But over a period of time we realized that वो इंसेक्टिसाइड जहाँ पर भी सॉइल के अंदर pH वैल्यू ज़्यादा है, if it is 7 or above, okay, there this chemical degrades very fast. And that was to my loss. We did a job in Nimrana. पार्ले जी की फैक्ट्री थी, huge unit, and we did the treatment with chlorpyrifos as per the BIS code. And I think within probably 1.5 years, they called us back saying कि जगह जगह पे termites आ रही है. So then we, not knowing that this was because of the property of the insecticide, we use the same insecticide again, doing the post-construction treatment. So after 8-10 months, again we got the call कि दोबारा आ रही है. Okay. And that is when we thought यार ये क्यों हो रहा है. Then Google Baba search and all those things happened, and we realized कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है. We also tried to find out from there. उनसे भी पूछा भाई सॉइल में क्या आपकी pH वैल्यू क्या है, सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह ली. That gave us an idea कि यहाँ पे ये इंसेक्टिसाइड नहीं दूसरा इंसेक्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा. सॉइल टेस्ट तो फिर करा ही लेना चाहिए सर शुरुआत में. आपको ये चीज़ और सॉइल टेस्ट तो खैर यू डू इट फॉर मेनी अदर रीजंस आल्सो, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू नो इज सॉइल pH. दैट हेल्प्स यू इन सेलेक्टिंग द इंसेक्टिसाइड दैट यू. घर बनाते हुए भी बहुत लोग सॉइल टेस्टिंग नहीं कराते हैं, स्पेशली लाइक सिमिलर कॉलोनीज़ के अंदर, सिमिलर सॉइल टाइप्स के अंदर लोग अवॉइड कर जाते हैं. मैंने देखा है घरों के अंदर लोग नहीं करते. इंडस्ट्रीज एंड मे बी बिगर institutions they have to, because it has become a mandatory sort of a situation. जैसे आपने बताया कि नीचे की फाउंडेशन लेवल पे स्पेशली जहाँ जहाँ बिल्डिंग टच कर रही है हमारे उस सॉइल को, वहाँ हमें एक बैरियर बनाना है between the soil and the building. After that, once the construction moves up, subsequent floors, any anti-termite treatment to be done on those subsequent floors, yeah, we can be free about it. So as I told you right in the beginning, termites are soil insects. Yes. The moment you are treating the soil which is enveloping the building, you are safe. Okay. Only issue that can come up is your woodwork which you bring in. You have to be sure that they are not termite infested. And I think 99% of the times, anybody who buys wood would be at least checking this out कि यार दीमक तो नहीं लगी हुई है. बोरर लगी हुई दीमक आपके पास में लकड़ी आ सकती है. वुड बोरर इज अनदर वुड इंसेक्ट, बट
वो आपको आप डिटेक्ट नहीं कर पाते उसे। दीमक लगी लकड़ी बड़ी साफ दिखती है, तो nobody buys or nobody gets the termite infested Of wood course, into their building. साफी होती है So लकड़ी। that is okay. एक चीज़ और है सर, इट माइट कम अक्रॉस एज सिली, बट काफ़ी सारी सैंड एग्रीगेट इस तरीके की चीज़ें यूज़ होती हैं बिल्डिंग बनाने के अंदर। क्या इन एग्रीगेट्स के अंदर किसी तरीके से हमारे टर्माइट्स सीप इन कर सकते हैं, या इट इज़ अ नेचुरल सॉइल फिनोमेना ओनली? See, ज़्यादातर आजकल स्टोन डस्ट होती है या एम सैंड होती है वैसे तो। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये दे डू नॉट, आई मीन टर्माइट्स डू नॉट लिव इन देयर, दे कैन क्रॉस दैट बैरियर। आप एक मिथ है, मैं पनपते नहीं है वो हाँ, एक मिथ है। कई लोग कहते हैं कि हमने ना सॉयल कॉम्पैक्शन के बाद में पीसीसी से पहले 1 फुट का जमुना सैंड का बैरियर बना, वो लेयर डाल दिया, अब दीमक नहीं आ सकती। मैं उनको बोलता हूँ आप नोएडा में चले जाओ। मैं नोएडा में 30 साल से रह रहा हूँ। वहाँ पर जब आप खुदाई करते हैं तो पूरी सैंडी सॉयल है, राइट, एंड स्पेशली दैट एरिया वेयर दी वाटर लेवल इज़ अ लिटिल हायर। वहाँ पे तो आप मतलब आई थिंक 6-8 फुट पे तो पानी आ जाता है। उसमें आप जब फाउंडेशन खोदते हैं तो वो पूरे सैंड होता है, और उन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा दीमक है। तो सैंड डज नॉट स्टॉप यू। आई बिलोंग टू राजस्थान, जैसलमेर प्रॉब्ली उससे ज़्यादा सैंडी एरिया तो होनी नहीं है, देश में नहीं है। वहाँ पे बहुत अच्छी से दीमक लगती है। बीकानेर विच इज़ माई नेटिव प्लेस, वहाँ पे बहुत अच्छे से दीमक लगती है। सो एज ए सेड, termites will be this, there will be different species of termites which will be inhabiting those areas, but termites are there everywhere. आप मसूरी चले जाइए, आप शिमला चले जाइए, आप कोई रॉकी एरियाज में चले जाइए, वहाँ पे भी आपको टर्माइट्स मिल जाएंगे। आप अगर ग्रेड क्लास 2 के अंदर जाके और कोई एक्सकवेशन करते हैं तो नीचे पत्थर आ जाते हैं तुरंत, आपने देखा होगा हर जगह पे, यू विल फाइंड, है ना, हिली है वो, लेकिन उसमें से टर्माइट निकलती है बराबर। तो देर इज नथिंग लाइक दैट कि भाई ये पत्थर है तो इसलिए नहीं आएगी, या यहाँ सैंड है तो इसलिए नहीं आएगी, दैट डजंट। ग्रेट, दैट आंसर्स माय क्वेश्चन कि वी नीड नॉट वरी। अगर हमने ये वाले एरियाज ट्रीट कर लिए तो वी नीड नॉट वरी अबाउट सब्सिक्वेंट फ्लोर्स। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कॉन्स्टेंटली हियर इज जहाँ नमी होगी वहाँ दीमक के पनपने का या बनने का या आ जाने का चांस ज़्यादा होता है। मिथ या फैक्ट? आई वुड से इट्स अ फैक्ट। पनपने का नहीं। देखिए, पनपना तो जैसा मैंने आपको बोला वो सॉइल से होगा, लेकिन जहाँ पर भी ह्यूमिडिटी होगी, जहाँ पर भी नमी होगी, टर्माइट्स हमेशा उस तरफ अट्रैक्ट होंगी। ओके। एंड एक बात याद कीजिए, मॉनसून के टाइम पे अगर आपने देखा हो तो आपको कितनी वैरायटी के इंसेक्ट्स दिखते हैं। बिल्कुल दिखते हैं। रीज़न क्या है? नमी बहुत होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो एवरी काइंड ऑफ इंसेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। So that is same with termites also. इन्फेस्टेशन ग्रोथ होती है उस दौरान होती है। अब मान लीजिए, क्योंकि मैंने जैसे आप, अच्छा ऊपर कैसे जाती है कि आपने, ये भी बताता हूँ आपको। आप नीचे से ऊपर लेके आते हैं वॉल को, ब्रिक बाय ब्रिक वो चढ़ती है ऊपर, उसके ऊपर प्लास्टर लग जाता है जी। जो टर्माइट होती है वो प्लास्टर के पीछे ब्रिक जॉइंट्स के साथ साथ में चलती है, क्योंकि जहाँ पे भी प्लास्टर होगा और ब्रिक जॉइंट होगा उसमें गैप तो होता ही है। इट रिक्वायर्स 1/16 ऑफ एन इंच टू मूव, तो उतना गैप बड़े आराम से मिल जाता है। कीप ऑन मूविंग। नाउ इफ देयर इज ह्यूमिडिटी, द प्लास्टर इज वेट, तो वो बहुत आसान हो जाता है जाना। अदरवाइज उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है जाने में। दी वेटर द प्लास्टर, easier it is for the termite to move. ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। ये तो न्यू बिल्ड में कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी, ध्यान भी नहीं दिया। आप कभी भी देखिएगा, आप जहाँ पे भी सीपेज होगी ना, वहाँ पे दीमक आने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं जी। हम कहते भी हैं कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर सीपेज आपकी नीचे से आ रही है देन प्रॉब्ली दिस ट्रीटमेंट विल नॉट बी एज सक्सेसफुल, बिकॉज अगेन एज आई सेड, टर्माइट मतलब इंसेक्टिसाइड की मूवमेंट भी होती है पानी के साथ। तो फिर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली जो मिथ है, नेक्स्ट मिथ इज, जिस घर में धूप अच्छी होती है वहाँ टर्माइट्स का आपको कम मिलेंगे टर्माइट्स। दैट अ फैक्ट एज वेल, और दैट्स अ मिथ अगेन? दैट्स अ मिथ, बिकॉज टर्माइट्स एज सच डू नॉट कम आउट इन द ओपन। ओके। एक और चीज़ आपको बताता हूँ। आप टर्माइट के इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको लेके एंड गेट देम इनटू अ ग्लास पेट्री डिश, उसको पूरा कवर करके और ओपन में रख दीजिए। बाय इवनिंग दे विल डाई। ओके। दे डेसिकेट।
वो जो उनका बॉडी का मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है, विच इज़ वाई वेन एवर यू सी अ टर्माइट ट्रेल और वॉट वी कॉल एज अ टर्माइट ट्यूब, वो पूरी एक मतलब टनल सी होती है, Concentrated, इट्स अ हाँ, टनल yeah, in which the termite is moving, and in that also you'll see one thing, जहाँ पर भी टर्माइट की मूवमेंट चल रही है बराबर, उस ट्यूब को अगर आप हाथ लगाएंगे इट विल बी स्लाइटली मॉइस्ट, oh, बट इफ इट इज नॉट दैट ट्यूब और दैट टनल इज नॉट बीइंग यूज्ड, देन इट विल बी ड्राई। और आप दूर से देख के बता सकते हैं, जो मॉइस्ट होगी उसका कलर थोड़ा डार्क होगा, जो ड्राई होगी उसका थोड़ा Light. लाइट होगा, तो यू कैन मेक आउट कि हाँ ये रूट जो है ये अभी भी एक्टिव है और ये रूट खत्म हो चुका है। okay, So that is why, and the reason you need that is because they need moisture all the time. One, second, they cannot face light. तो ये ट्यूब ही है जो कि उनको आगे लेके जाती है। That's it. मैंने जो साइटों पर सुना है, हम्म, वो कहीं सुनी बातों पर बिलीव वाली बात है ये। वो कहते हैं कि जब नींव में टर्माइट होती है तो वो कॉलम्स के थ्रू ऊपर चली जाती है बिल्डिंग के अंदर। कैन टर्माइट एक्चुअली गो थ्रू कंक्रीट एंड Along. थ्रू, दे कैन ओनली There's गो a अलोंग, word. राइट? The word is गो along अलोंग with द, it. दैट्स इट। सो इट देन वो कहना कि कॉलम के साथ ऊपर जाती है तो गलत है। वो तो किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के साथ ऊपर जा सकती है जहां उनको रास्ता मिल जाए, रास्ता जहाँ वो मिल जा जाएगा, सकते anything. हैं। ओके, Can be a RCC surface, it can be a masonry structure, it can be a wooden surface, anything. For that matter, आपने देखा होगा DDA के फ्लैट्स में कई जगहों पे ये लगे होते हैं, लोहे की चौखटें होती हैं, हाँ जी। हैं? वहाँ भी दीमक आती है। हम्म, होता क्या है, वो लोहे की चौखट के साथ में जाती है, जो फ्लश डोर होता है उसके अंदर घुस जाती है एंड फीड्स ऑन द डोर इंस्टेड ऑफ द फ्रेम। So there's one again an instance that I'm telling you. One old university professor who used to stay in Delhi University, वहाँ पे उनको अपना मिला हुआ था, मकान मिला हुआ था, और उन्होंने शेख सराय में एक DDA का फ्लैट खरीद रखा था। और वो बिकॉज वो डरते थे कि किसी को रेंट पे दे देंगे तो खाली नहीं करेगा, तो उन्होंने उसको कभी भी रेंट आउट नहीं किया। जी, साल 2 साल में आके एक बारी चेक करके जाते थे। एक बारी जब आए तो देखा फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट था, वो चौखट तो बिल्कुल सही थी लेकिन दरवाजे जो थे वो जैसे धक्का दिया दरवाजा नीचे। That was because the entire door was eaten up by termites. और लोहे की चौखट लगाई लोहे की इसलिए थी चौखट कि दीमक कि ना आए। दीमक ना आए। तो उसको तो बस रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए। इट हैज नथिंग टू डू विद, ओके। सो लोहे की चौखट कहीं ना कहीं कोई फूल हाँ, सिस्टम नहीं है, it is simply that you have a frame which cannot be destroyed, but at the same time there are so many other things which can be द destroyed. डोर विल बी स्टिल बी ससेप्टेबल टू इट। तो मन को शांति देने के लिए हमने चौखट तो लोहे की लगा दी है। देयर आर अ लॉट ऑफ मटेरियल्स व्हिच आर रिप्लेसिंग वुड नाउ बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। हम लोग वुड से WPC की तरफ रुझान देख रहे हैं, विच इज़ वुड प्लास्टिक composite. External door windows, you are looking at UPVC, you're looking at aluminium, you are looking at even steel windows in some cases. People are moving away from wood for that. लकड़ी के लिए जो अलमारियाँ बन रही हैं, एक आजकल बोर्ड चलता है विच इज़ कॉल्ड HDHMR बोर्ड, कहते हैं उसमें लकड़ी में दीमक नहीं लगती। इज़ दैट अ फैक्ट, डू यू थिंक? या ऐसा कोई लकड़ी नेचुरल वुड नहीं है एटलीस्ट जिसके अंदर दीमक नहीं लग सकती है? क्योंकि बड़े भी कहते थे कि शीशम की लकड़ियों में कभी दीमक नहीं लगती थी, और जो पुरानी हमारे घरों में टीक के होती थी, टीक होती है, और बर्मा उनके टीक होती बर्मा है। टीक, उनके अंदर कभी दीमक नहीं लगती है। इनमें से कौन सी चीज़ें कितनी सच है, क्या इन चीज़ों का क्या सत्य है, वो बताइए। ऐसा है, एक बात फिर वापस आते हैं बेसिक्स पे। बेसिक ये है कि सेलुलोज होगा तो टर्माइट आएगी, लकड़ी में सेल्यूलोज होगा ही होगा, चाहे वो HDMR हो या आपका क्या नाम है शीशम हो या टीक हो। डिफरेंस कहाँ आता है, बड़े बूढ़े सही कैसे होते थे कि जो टीक या शीशम की जो वुड होती थी वो इतनी डेंस होती थी दैट इफ़ यू सी द डैमेज डन बाय टर्माइट्स इन अ सॉलिड टीक वुड, इट विल नॉट मेक इट हॉलो, वो उसमें बीच में ग्रूव्स बन जाती है, ओके, बट इट विल नॉट हैव दैट हॉलो साउंड जो कि आप नॉर्मल फ्रेम में देखते हैं, ठोका और अंदर से पूरी मिट्टी निकल आई, वो चीज़ नहीं होती। सो द डिफरेंस लाइट देयर, बट इट इज़ नॉट दैट कि वहाँ पे वो दीमक नहीं लगेगी। ओके। दूसरी बात आपने एक और जो कहा कि एल्यूमिनियम की तरफ जा रहे हैं, UPVC की तरफ जा रहे हैं। देखिए आप किसी के भी तरफ चले जाइए, घर के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट फॉर रेजिडेंसेस, कि आपके यहाँ लकड़ी ना हो, नंबर 1, आपके यहाँ कपड़े ना हो, नंबर 2, आपके यहाँ कागज़ ना हो। ये तीनों चीज़ें ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने ये देखा है कि जब लोगों ने एल्यूमिनियम के डोर्स लगा लिए, लोहे की चौखटें लगा ली, जहाँ पे अलमारियाँ रखनी थी वहाँ पे वो पूरा बना के और
लोहे की मतलब अलमारियां लगा दी हैं, कारकस ठीक है। लोहे का। ऐसे केसेस में लोहे की अलमारी के अंदर कपड़े को खा चुकी है मेरे ही नेबरहुड में। Termites came along with the wall. It was on the first floor. They found a gap in between the अलमारी का जो दरवाजा होता है उसमें गैप मिला, उन्हें उस गैप से अंदर गई, वहाँ पे कपड़े पड़े थे, ख़त्म कर दिए। सिमिलरली 90% ऑफ टाइम्स आप बेडरूम के अंदर जो आपका बेड होता है वो हमेशा दीवार के साथ में लगा के रखें, बिल्कुल लगा होता है ना। दीमक दीवार के साथ में आती है, इसको बेड के पीछे से उसके बिल्कुल। लकड़ी को खा जाती है। उस खाने के बाद में वो अंदर जो बॉक्स होता है आपका, उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं उसको भी खाने लग जाती है, बिल्कुल होता है। और Yes. मोस्टली आप उसको नहीं जान पाते हैं, यू आर नॉट अवेयर ऑफ वी नॉट पेइंग अटेंशन, बेड बंद पड़ा है, ओवर द बंद पड़ा है। इयर्स कभी खुलता है वो, कभी ओवर अ फ्यू मंथ्स, ओवर अ फ्यू इयर्स, and then you realize what has happened. What has happened? And it does happen. It has happened in many cases. Some of the cases I know personally. एक आर्किटेक्चरली एंड इंटीरियर डिज़ाइन के तहत आजकल वो वुडन फॉल सीलिंग्स बनती थी बहुत पहले भी, और दे लुक लैविश, दे लुक वेरी रॉयल, तो लोग बड़े शौक से घर बनाते हैं, और दीमक से सब चीज़ तितर बितर हो जाती है। हमने न्यू बिल्ड की तो बात आपसे की, अब आ जाते हैं आपका जो IS कोड का पार्ट 3 है, विच इज़ अबाउट previously built buildings and avoiding or like termite treatment in those existing homes या buildings। क्या अच्छे मेथड है सर कि आज जो पीड़ित है टर्माइट से आज अपने घरों में, what is the best way for them to actually get rid of it? इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं Please. कि मैंने आपसे बोला कि BIS 6313 पार्ट 2 इज मेंट फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ट्रीटमेंट, Yes. ठीक है। Part 3 is meant for existing buildings. There is a part 1 also, जी, which is basically constructional measures to avoid termite infestation in a building, okay, in which there is no chemical treatment involved. The construction is done in such a manner that you are creating physical barriers which will not allow termites to come. okay, Not that I have seen anybody doing it. Rarely, probably IITians do it. Otherwise, मैंने और कहीं नहीं देखा. But yes, there are constructional measures. But then they also will have to keep pace with the change in construction technology. okay. तो उसमें रिवीजन मैंने कभी नहीं सुना है, तो प्रॉब्ली आज की डेट में वो इतना रिलेवेंट शायद Can ना you भी tell हो। us a few things about what is in that code? Yeah, Honestly speaking, I have very limited knowledge about it, but basic thing is that the barrier has to be a physical barrier, so it will be something to do with RCC concrete, okay. which will not allow termites Maybe some to come out. membrane. No, it's nothing to do with membrane, sir. It is basically the the construction is done in such a manner where anywhere the soil is in contact with the building structure, you will have a RCC surface which will not allow it to come in. Okay, That's the way it is. okay, interesting. अब बात आ गई आपकी Part 3 पे। पार्ट 3 की। पार्ट 3 में थोड़ी सी दिक्कत हमें ये है, पार्ट 3 इज मोर थियोरेटिकल Okay, as compared to what you see practically in in the houses or any building. बिकॉज आप देखिए, एक बात तो समझिए यार कि मकान तो मतलब 10 मकान जो बने होंगे सारे एक जैसे बने होंगे, लेकिन अंदर जाने के बाद में आपको हर मकान अलग दिखता है, बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी का अपना टेस्ट होता है। बिल्कुल, किसी आदमी को लकड़ी से बहुत प्यार होता है, किसी को जरा भी पसंद नहीं होती, किसी को बीच में पार्टीशन लगाना पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। तो किसी की फ्लोरिंग जो है वो सीमेंटेड फ्लोरिंग है, किसी ने वहाँ पे इटालियन मार्बल लगा रखा है। जी, हर तरह की आपको मतलब कंस्ट्रक्शन में हर तरह का वेरिएशन दिखेगा। जी, अब पार्ट 3 हमारा जो है वो ये कहता है कि एक सबसे बेसिक जो उसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप ये फ्लोर पे ट्रीटमेंट करना है आपको, तो वही उनका ये कहना है कि जी पूरे फ्लोर के अंदर आप 300 mm की दूरी पे, यानी 1-1 फुट की दूरी पे होल्स ड्रिल कीजिए, एक ग्रिड बना लीजिए, 300 बाई 300 की पूरी ग्रिड बना दीजिए, उसके अंदर ड्रिल करके केमिकल डालिए, सो दैट पूरी सॉइल इसके नीचे जो है उसमें से दीमक खत्म हो जाए। ओके। अब आप मुझे बताइए, आपका ये फ्लोर है, आप मेरे को हर 1 फुट पे यहाँ पे ड्रिल करने दोगे? नहीं, आपने 1-1 फुट के गैप पे ड्रिल किया होल, उसके बाद आप उसमें केमिकल फिल कर रहे हो, एंड देन यू कैपिंग देम बेसिकली, दैट्स द ट्रीटमेंट, राइट? एग्जिस्टिंग घर में तो कोई नहीं करने देगा, कोई नहीं करने देगा। सो पार्ट 3 and does maybe it will damage the structure also. I don't know how big a drill that is. I don't know what effect these are that has. normally 8 to 10 mm drill Okay, bits. so there are like okay, And चलिए, normally the depth is around 200 mm, yeah, so about 8 existing पत्थर टाइल वर्क के ऊपर या एक सुंदर करना, फ्लोर मतलब कोई नहीं करने देगा। आप इमेजिन कीजिए ना कि यार मैंने 300 400 500 रुपए पर स्क्वायर फुट का पत्थर लगा रखा है,
वो पॉसिबल नहीं है सर, नहीं हो इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टुडे. So, in such cases, it is your expertise, it is your experience which counts. Okay. So, when we talk about post-construction treatment, we do not depend on the code. Instead, we depend on our visual inspection of the premises. Okay. So we never, at least as far as my company is concerned, we never quote to you or we never give a proposal without actually visiting the place, having a look at the place, knowing what exactly needs to be done out there, and then give them the solution for that. Hmm. So in a way, you can say that post-construction is a customized solution for every particular structure. Because every particular structure has a particular problem which might be unique to them. Okay. Second, in an existing building, termites can come from different routes. Yes. बिल्डिंग जब बना रहे हैं तब तो हमें सारे रूट्स पता है, हम सारा कवर कर लेंगे, लेकिन जब बन गई है उसमें दीमक आ रही है जी. तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कहाँ से आ कहाँ रही से? है. अब कहाँ से आ सकती है? सिंपल डोर फ्रेम नीचे फ्लोर के अंदर आप एम्बेड करते हैं, उसको पीसीसी तक जाता है, वहाँ से टर्माइट आ गई ऊपर फ्रेम के साथ चली गई. जी. वेरी कॉमन. सेकंड, आपने जो कबोर्ड्स हैं, जो फिक्स्ड कबोर्ड्स हैं, उनको आपने इंस्टॉल किया है, उसके पीछे जो लकड़ी का गुटका लगता है वो प्लास्टर को वो करता है, पेनिट्रेट करता है सो एज टू मेक इट स्टेबल. और टर्माइट आती है ब्रिक जॉइंट्स के साथ में, वहाँ पे वो लकड़ी उसे दिखती है, इट एंटर्स फ्रॉम देयर, इट गोज इनटू दी व्हाट डू यू कॉल इट, दी ये अपना पूरा लकड़ी के कबर्ड्स में चली गई. देन यू हैव थिंग्स कमिंग इन फ्रॉम दी स्विच बोर्ड्स. अब उसमें क्या है, इंटरनल जो पाइपिंग हाँ, वो सब जो आपकी सैनिटरी जो कंडुइट लाइन जो है उसके साथ से टर्माइट आ रही है. ओके. सो यू नीड टू नो कि यार वो कहाँ से एंट्री कर रही है, और एल्स यू मेक अ बैरियर अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द बिल्डिंग सो दैट इट डजंट गो ओवर देयर. एट द सेम टाइम आपको वो जो कंडुइट का पैसेज है उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा. इज इट पॉसिबल? यस इट इज. आप स्विच बोर्ड खोलें और उसके अंदर डस्टिंग कर सकते हैं. यू नो दीज इंसेक्टिसाइड्स आर आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ डस्ट. Okay. So if you apply a dust inside, then that gets into the body of the insect, and that is how it is killed. And because the movement is constantly over there, टूट जाती है. छूट जाती है. या ऑयल बेस्ड इंसेक्टिसाइड यूज कर लीजिए. ऑयल बेस्ड में ये होता है कि इट आल्सो हैज अ फ्यूमिगेंट इफेक्ट, दैट इज दी यू नो दी वेपर्स को. सो दिस अनदर स्टोरी अबाउट इट. वी वर डूइंग सम वर्क इन सफदरजंग एनक्लेव, और वहाँ पे प्रॉब्लम स्विच बोर्ड से ज़्यादा आ रही थी. तो हमने एक रूम में, मतलब अबाउट 8-10 फीट के ऊपर एक जंक्शन बॉक्स बना हुआ था. उस जंक्शन बॉक्स के अंदर हमने केमिकल डाला, ऑयल बेस्ड केमिकल डाला काफ़ी, एंड विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल इन द नेक्स्ट रूम एक स्विच बोर्ड के अंदर से इतनी दीमक निकली है जिसकी कोई लिमिट थी. सो दैट मेड अस रियलाइज कि वो पूरा कंडक्ट का एक पैसेज था जिसके साथ साथ अंदर वो थे. राइट. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू लर्न बेसिकली. आप जब भी कोई टर्माइट ट्रीटमेंट करने जाते हैं, यू normally you learn something about it. Is there any quick fix कि करा ट्रीटमेंट घर में आज से टर्माइट फ्री? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना क्योंकि सर आपको ऋषभ जी एक बात कहूँ, आप नेचर से लड़ रहे हो. द टर्माइट इज इन सर्च ऑफ फूड, इट्स ए मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर देम. तो आप जो बैरियर बनाते हैं, जितने भी बैरियर बनाते हैं, वो तो यही कोशिश करेगी ना कि कहाँ कोई बैरियर जो है वो वहाँ पे कोई गैप निकला है, टू ट्राई एंड कम अप फ्रॉम देयर. हम उस टर्माइट के सर्वाइवल को फाइट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. वेरी इंटरेस्टिंग सर, द वे यू पुट इट इज वेरी. और ये ना, नाउ दिस इज एंटोमोलॉजी दैट्स स्पीकिंग बाय द वे, एंड योर एक्सपीरियंस आल्सो. कई बार क्या होता है, जैसे हमारे घर में कोई नई चीज़ें आई, हमने वो बॉक्सेस जो हैं, कार्टन्स, वी डोंट डिस्पोज ऑफ देम. उठाया हमने, उनको रैक किया, स्टैक करके साइड में रख दिया कहीं. देन देर इज़ सीपेज इन हाउस, तो वो मॉइस्चर वाला एक एलिमेंट आ जाता है. देन वी हैव रद्दी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, एवरीथिंग इज लाइंग इन अ स्टैक. कई बार ऐसी भी डिस्पोजेबल जगहें होती हैं घरों में कि चीज़ें पड़ी रह जाती हैं, पीपल डोंट पे अटेंशन टू देम. स्पेशली जैसे पुराने डीडीए फ्लैट्स के अंदर गिराजेस होते हैं, उन गिराजेस में लोग अपनी चीज़ें रख के छोड़ देते हैं कि चलिए पड़ा है, देखेंगे ऑन सम संडे या किसी दिन निकालेंगे इसको, चीज़ों को निकाल देंगे. बट ये जो चीज़ें हमने साइड करके रख दी हैं विदाउट डिस्पोजिंग देम ऑफ, दे बिकम अ वेरी बिग एपी सेंटर फॉर ऑल दीज थिंग्स. मैंने अपने खुद के घर में नोट किया हुआ है.
मेरे फादर ने घर रेनोवेट किया था मेरी शादी से पहले और बड़े शौक से घर बनाया था. ही स्पेंट अबाउट आई डोंट नो अ लॉट ऑफ मनी इन 2010-12. शौक था उनको कि बेटे की शादी करनी है और उन्होंने बड़ी सुंदर हमारे घर का इंटीरियर डिज़ाइन कराया था किसी से और इट वाज अ ब्रिलियंट होम दैट ही हैड डिज़ाइन एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद द फाइनल जॉब दैट वाज डन. हमारा But ग्राउंड that फ्लोर था. brilliant design had a lot of woodwork also. इट हैड अ लॉट ऑफ वुडवर्क सर. हमारी सारी फॉल सीलिंग लकड़ी की थी. हमारे घर में पीओपी का काम भी था बट द मेजर लुक ऑफ इट वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द वुड एंड द वुडन पैनल्स दैट वर इंस्टॉल्ड क्योंकि लाइट्स उनके अंदर थी एंड इट वाज अ ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल डिज़ाइन दैट वाज मेड. और वो जैसे वो पहले कहते हैं ना कि प्री इंडिपेंडेंट जो एरा थी हमारी तो उस तरीके के लकड़ी के पैनल्स बनाए हुए थे बड़े सुंदर सुंदर हमने. और अब पीओपी शायद वो सूखी नहीं थी फॉल सीलिंग की. देयर वाज प्रॉब्ली मॉइस्चर इनसाइड एंड एवरीथिंग वाज डन इंस्टॉल्ड क्योंकि एक टाइमलाइन भी होती है तो जल्दी जल्दी करना होता है. तो आई थिंक दैट मॉइस्चर ऑल्सो हेल्प्ड बट वी नेवर थॉट कि जिस क्वांटिटी में हमारे घर में दीमक होगी शायद कुछ मिलियंस की तादाद में क्वांटिटी में हमारे घर में दीमक थी. ऑल दोज फॉल सीलिंग्स इवेंचुअली वर रिमूव्ड टू द पॉइंट दैट वी डोंट वांट एनी फॉल सीलिंग एनीमोर इन आवर हाउस. इट्स प्लेन वॉल्स प्लेन सीलिंग्स है मेरे घर के अंदर जिनके ऊपर हमने लाइटें बाद में लगाई और वो सब कुछ चेंज हुआ एक एक करके ओवर द 2012 से लेके अगले 10 साल तक हमारे घर के अंदर 4, 5, 6 बार मेंटेनेंस हुई है एंड ईच रूम वाइज वी हैव ट्राइड टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम एंड इट कीप्स कमिंग बैक टू अस. बस उस दौरान बस जो हाल हुआ हमारा अगले 10 साल के लिए. नाउ वी वर ऑफ द ओपिनियन एंड एवरीबडी जितने भी लोग हमें मिले जिन्होंने एडवाइस किया उन्होंने बोला आपका ग्राउंड फ्लोर का घर है इसलिए ज़्यादा तकलीफ है. अब मैं पिछले 2 साल से एक फर्स्ट फ्लोर वाले पुराने घर में वापस शिफ्ट हो गया हूँ. वहाँ भी दीमक है. ऐसा नहीं है दीमक वहाँ नहीं है. सो बट ऑफकोर्स इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है शायद उसकी बट इट्स देयर इन द बाथरूम विंडो विच इज़ राइट आउटसाइड. उसके राइट बाहर हमारे रेन वाटर के पाइप्स जा रहे हैं उनके पास वो दीमक दोबारा मैंने देखी अपने घर में. किचन के कैबिनेट्स में है जहाँ सिंक एरिया है उसके नीचे कैबिनेट्स हैं उनके नीचे है. वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज कॉमन इन आवर हाउस दैट वाज इनिशियली डन वाज कि उसमें जो लकड़ी यूज़ हुई थी वो MDF बोर्ड था ज़्यादातर. अब MDF बोर्ड एज यू नो कि इट्स क्रिएटेड राइट 2 प्लाईज होती हैं और बीच में उसमें भरा जाता है कुछ विच इज़ नॉट अ वेरी ठोस या डेंस वुड नहीं होती वो. तो वो तो इस तरीके से क्रम्बल हुई थी MDF. इट जस्ट कम्प्लीटली बिकेम यूजलेस वेरी क्विकली. तो वो जो दीमक का एक्शन था उस लकड़ी के ऊपर वो बहुत जल्दी दिखा हमें. तो हमने अब जब जितनी बार काम कराया वी वेंट फॉर हार्डर वुड और वी वेंट फॉर जो HD HMR टाइप बोर्ड्स होते हैं इस तरीके की चीज़ों से हमने काम कराया विच सीम्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर वुड. आई डोंट थिंक इट विल एंड फॉर एवर इन माई हाउस क्योंकि वो तादाद इतनी ज़्यादा थी. तो आई थिंक ओवर द ईयर्स हमें ट्रीटमेंट शायद कराते रहना पड़ेगा. बट जो मेरा एक्सपीरियंस विद MDF था इट वाज क्वाइट बैड. आई डोंट नो व्हाट योर टेक इज़ ऑन दैट कि इस तरीके की वुड हल्की भारी से क्या होता है. लाइक आपने बोला कि थोड़ा डेंस वुड पे थोड़ा कम इफेक्ट दिखता है. डेंस वुड वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट टीक एंड ऑल. एक बात. दूसरा सर एक बात समझे आप मतलब आप क्या चाहते हैं कि एक कोई स्पीशीज़ को आप बिल्कुल टोटली एलिमिनेट कर देंगे? तो हो ही नहीं पाता ना. नहीं हो सकता ना. कोई आई मीन इट्स नॉट अ एंडेंजर्ड सर एलिमिनेट नहीं करना चाहता लेकिन मैं अवॉइड तो कर सकता हूँ. हाँ अवॉइड कर सकते हैं आप. तो अवॉइड करने के लिए फिर आपको मेहनत हर दूसरे तीसरे साल करनी पड़ेगी. ये बात. दूसरी बात MDF HDMR ये सारी बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं. मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप UPVC लगा लेंगे या एल्यूमिनियम लगा लेंगे तब भी ये प्रॉब्लम आएगी. बिल्कुल. आप फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे थे तो उसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको. गुड़गांव से वाकिफ़ हैं आप. वहाँ पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बहुत बनी हुई हैं. तो वहाँ पर 22वीं मंजिल तक तो मैं काम कर चुका हूँ. 22nd आपके पास कंप्लेंट्स आ चुकी हैं. हाँ 22nd फ्लोर पे एक इंटीरियर डिज़ाइनर, चांस की बात है, इंटीरियर डिज़ाइनर थी वो. और उन्होंने मकान का मतलब फ्लैट लिया और उन्होंने कहा कि मैं इसको रिनोवेट करूँगी. आई वुड लाइक टू डू इट एज पर माई टेस्ट. एंड द फर्स्ट थिंग शी सॉ वाज टर्माइट्स ओवर देयर. Then from what I understand, not that I've seen it, मैंने 22nd फ्लोर पे यहाँ भी देखा है और कैनॉट प्लेस में भी देखा है टर्माइट्स को जाते हुए. मुंबई में मैंने ये सुना है कि 64th फ्लोर पे भी टर्माइट नज़र आई है. 64th फ्लोर. नाउ आई टेल यू वन थिंग. एक चीज़ जो कि कंस्ट्रक्शन में जो आदमी थोड़ा भी अगर उसकी नॉलेज होगी तो वो जानता है. एक चीज़ होती है कोई भी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में एक्सपेंशन जॉइंट. आप जब
बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बनाते हैं, देन यू हैव दोज कॉलम्स, 2 columns together. Okay. And because of the fact that you have steel in between, which is affected by the change in temperatures. Okay. तो उसका expansion होता है, retraction होता है जी. तो टू अवॉइड कि उसका कोई असर पड़े, 2 कॉलम्स के बीच में एक फ्लेक्सिबल मटेरियल डाला जाता है, जिसको पहले तो शेल टैक्स बोर्ड डाला जाता था, आज की डेट में मुझे नहीं मालूम अब क्या डालते हो, बट दैट फ्लेक्सिबल मटेरियल हेल्प्स यू टू वो जो उसके बैड इफेक्ट्स है एक्सपेंशन रिट्रैक्शन के, उसको वो अवॉइड करने के लिए वो डाला जाता है. अनफॉर्चुनेटली दैट गोज राइट टिल द बेस ऑफ द बिल्डिंग एंड गोज टिल द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑल्सो. तो नीचे से ऊपर पूरा वो रास्ते में जाता है जी. और वो एक ऐसा मटेरियल है जिसको टर्माइट आराम से खा लेती है. Okay. और उसके साथ साथ में चलती है. तो आपको एक्सपेंशन जॉइंट्स के साथ में दीमक हमेशा ऊपर तक जाती हुई नजर आ जाएगी. सेकेंड इज योर सैनिटरी लाइंस. शाफ्ट हर घर में होता है, हर बिल्डिंग में होता है. उस शाफ्ट के साथ साथ में आप देख लीजिए हमेशा दीमक ऊपर जाएगी. तो ये 2 बड़े कॉमन तरीके हैं जिनके साथ में टर्माइट्स ऊपर जा सकते हैं. सो यू कैन हैव इट ऑन अ सेकेंड फ्लोर ऑल्सो, यू कैन हैव इट ऑन अ ग्राउंड फ्लोर एंड 22nd फ्लोर ऑल्सो. नॉट मेक एनी डिफरेंस. फर्क इतना हो जाता है कि बाय द टाइम इट रीचेस द सेकंड फ्लोर, दैट इज अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू. टर्माइट्स एज वी सेड कि नीचे तो नॉर्मली तो वो कॉलोनीज होती हैं, बट टाइम्स कम व्हेन ऑन अ वेरी हायर फ्लोर what will happen is they will make a secondary colony. Okay. Now that secondary colony will slowly lose contact with the primary colony at the base. Okay. और वो self sufficient हो जाएगी, वो अपने आप में एक पूरी की पूरी यूनिट बन जाएगी. और ऐसी जगहों पे आप देखेंगे कभी भी अगर आप लकड़ी वहाँ से हटाएंगे तो यू विल हैव सम फ्लाइंग इंसेक्ट्स कमिंग आउट. Those are the elates as we call them, the winged insects which help you in which help termites in multiplying. So अगर वो एलिट्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपके यहाँ पे सेकेंडरी कॉलोनी बन गई है. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज. खासतौर से जो अपर फ्लोर्स में आप कबोर्ड्स के पीछे जब उसको हटाते हैं तो वहाँ पे ये हाल दिखता है. तो ये इसी के कारण होता है. सर आपसे बात करें तो डर और लग गया मुझे तो लग रहा है इनसे कोई जीत ही नहीं है. तो ये जीत कैसे पाई जाए? ओवर द ईयर्स एक रेगुलर ट्रीटमेंट अपनाया जाए या फिर एक स्पेशली एग्जिस्टिंग घर के अंदर? What is the best way for a person like me जो अपने घर में पहले परेशान हो चुका है? हाँ, आज थोड़ी शांति है, थोड़ा कभी कभार कभी एक दरवाजे के अंदर एक होल दिख जाता है तो फिर हम लोग पैनिक अटैक में आ जाते हैं दोबारा कि देयर इज सम प्रोपगेशन हैपनिंग अगेन. व्हाट शुड बी डन? क्या करें? देखिए, टर्माइट ट्रीटमेंट तो जैसे मैंने आपसे कहा कि देयर आर सेट प्रोसीजर्स व्हिच यू हैव टू फॉलो. नाउ लेट अस कम टू द द एक्चुअल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. Okay. नंबर 1, आपको मालूम है कि जो पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस करते हैं उनके पास में लाइसेंस होना ज़रूरी है? नहीं, मुझे बात. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो. Okay. What kind of license is it? This is a license to commercially use insecticides and store them and use them for commercial purposes. Okay. Who gives you the license? This license is given by the देयर इज दिस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर एक डिवीजन होता है इंसेक्टिसाइड का. Okay. वो देते हैं. अच्छा, ओके, ठीक है. एंड दैट इज देयर इन एवरी स्टेट. वहाँ से आपको ये लाइसेंस लेना होता है. ठीक है. सो फॉर दैट द क्राइटेरिया इज दैट यू शुड बी अ साइंस ग्रेजुएट और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट. with if you're a science graduate then you need to have chemistry and biology as one of your subjects. Okay. Then you also need to have attended a course for pest control services certification. And these certification courses are held in Hapod, in Hyderabad, yes, in Mysore, and in Roorkee. Okay. There are these government institutions which hold these courses. These are normally 15 days to 3 weeks courses. Okay. In which they tell you about practical aspects of pest control. Okay. Once you do that, then you get a certificate, and that is a mandatory thing while applying for the certificate. Okay. For the license. For the license. So I think अगर हमारे यहाँ पे 100 पेस्ट कंट्रोल वाले हैं तो प्रॉब्ली 50 से 55 बगैर लाइसेंस वाले हैं. Okay. जो आप कहीं पे भी देख लेते हैं ना, मोनू पेस्ट कंट्रोल और सोनू पेस्ट कंट्रोल और एक मोबाइल नंबर लिखा होता है, वो सारे वही होते हैं. नंबर 1. नंबर 2, इंसेक्टिसाइड्स
जो आपके पास में आते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स में भी वेरिएशन काफ़ी होता है। एवरी इंसेक्टिसाइड, वैसे नॉर्मली एवरी इंसेक्टिसाइड इज़ BIS मार्क्ड, तो BIS मार्क के बाद में भी टू अचीव द कंसिस्टेंसी इन योर प्रोडक्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सर जो आपने आई स्टैंडर्ड बोला वो तो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का आई स्टैंडर्ड है, ये प्रोडक्ट के लिए मैं प्रोडक्ट का भी कोई आई कोड बिल्कुल होता है। कैन यू मेंशन? एवरी बिकॉज सी देर आर मे बी मोर देन 500 इंसेक्टिसाइड्स, ओके, हर इंसेक्टिसाइड के लिए एक अपना अपना अलग कोड होगा। होगा, Fair तो enough, देयर आर ठीक है। डिफरेंट कोड्स फॉर दैट। चलिए ठीक है। तो जो आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में, वो आपको कुछ मैन्युफैक्चरर्स देते हैं। सम गुड मैन्युफैक्चरर्स आर देयर हु प्रोवाइड यू विद consistent products of good quality. ओके, Use them. Second, third, please find out, get references. मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर कस्टमर को बोलता हूँ कि देखिए, आप ये सोचते हैं कि हाँ जी, ये एक आदमी आके आपसे 1000 रुपये मांग रहा है और दूसरा 5000 मांग रहा है, तो क्या कोई डिफरेंस है या नहीं? क्योंकि आपके दिमाग में ये होता है कि भाई दोनों आके दिमाग मारेंगे हमारे यहाँ पे। करेक्ट? Remember one thing, when you are inviting a pest control operator into your house, basically you are allowing him to spread poison inside your house. That is the basic fact. करेक्ट। कोई भी इंसेक्टिसाइड पॉइजन है और आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि हाँ तुम आके और हमारे घर में ये पॉइजन स्प्रेड करो। इफ़ ही डज नॉट नो हाउ टू यूज इट, इफ ही डज नॉट नो हाउ टू अप्लाई इट, it can lead to disasters also. And those disasters do happen, once in a while. People have lost their lives Sure. because of this. So you have to be very sure when you're talking about, the kind of people whom you're employing for this treatment. So एक चीज़ मुझे पूछनी है, आई एम सॉरी टू ब्रेक योर थॉट। जब भी कभी कोई दीमक की दवाई घर में अप्लाई हुई है या किसी एरिया में आपको ये एप्लीकेशन हुई है, देयर इज दिस स्मेल इन द एयर जो बहुत समय रहती है, मतलब इतनी जल्दी जाती नहीं है घर से, 2-3 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं कई बार वो जाने में, एंड इट्स अ वेरी हॉरिबल स्मेल, मतलब वो कई दिन तक रहती है। फिर अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि ऐसे भी केमिकल्स आ गए जिनकी स्मेल शायद नहीं होती है। इज दैट स्मेल harmful to human beings? Obviously, yes. So after that treatment, should we vacate the area for some time? I'll tell you. See, one, yes, there are insecticides which are now odorless. Yes. They are colorless as well. So when you mix them with water, you feel as if पानी ही आप spray कर रहे हैं कोई। जी। So there are these products. Then there are still products which have some smell, reduced smell, but still some have some smell, and those are also used. Now the basic thing is, whenever you are applying anything on wood, तो आप उसको पानी में मिला के स्प्रे नहीं कर सकते, लकड़ी खराब हो जाती है। बिल्कुल। तो आपको उसके लिए कोई सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा, विच कैन ईदर बी टर्पेंटाइन ऑयल और या फिर अपना जिसकी स्मेल होती है या केरोसिन ऑयल, इनकी स्मेल होती है। नॉर्मली जो आपको स्मेल आज की डेट में ज़्यादातर नज़र आती है, मतलब जो आप फेस करते हैं, वो यही टर्पेंटाइन या इसकी स्मेल होती है। ओके। कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी स्मेल होती हैं, बट proper ventilation is a must. Second, ask whenever you are getting the work done, ask the person कि आप क्या यूज़ कर रहे हो और हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं। So we have, when I go to a customer, we have a list of things to do. These are the things that we want you to do before the treatment. These are the things that we want during the treatment, the support that we want from you, and these are the things that you have to do after the treatment is over. So they should be knowing exactly what we are doing. Second, always insist upon finding out कि आप कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इंसेक्टिसाइड बहुत आते हैं। You need to know what is the insecticide, number 1. Number 2, किस कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ हो रहा है। God forbid कोई मिसहैप हो जाता है, the first thing the doctor will ask you, what was it that was used? आपको मालूम होना चाहिए। What was used? There are different categories of insecticides. ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, कई तरह के होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके घर में कौन सा केमिकल यूज है। देन फॉर एवरी ट्रीटमेंट, पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट, ऑलवेज मेक श्योर दैट वंस द ट्रीटमेंट इज ओवर एंड वट एवर द रिकमेंडेड एक्सपोजर टाइम इज, उसके बाद में जब आप एंटर कर रहे हैं तो प्लीज़ एक प्रॉपर वेंटिलेशन उसे दे दीजिए। वेंटिलेशन बड़ा सिंपल है, आप दरवाजे खिड़की खोल दीजिए, पंखा चला दीजिए, फॉर गॉड सेक AC ना चलाएं।
वो रोटेट होती फिर रहेगी। वो रोटेट होती रहेगी। तो देर आर टाइम्स व्हेन पीपल मेक दिस वेरी बेसिक मिस्टेक कि स्मेल बहुत कम हो गई है, एसी चला दो, एंड देन यू विल हैव इट फॉर वीक्स टुगेदर, देन इट विल सीप इनटू योर फर्निशिंग्स, बेडिंग्स, एवरीथिंग। हर चीज़ में घुस जाएगा वो। सर, आई यूजुअली वी डोंट टॉक अबाउट ब्रांड्स, बट इट्स ओके। आई थिंक ये चीज़ ऐसी है। व्हाट आर योर फेवरेट और बेस्ट most effective products that you've used? If you want to mention brands, it's okay with me. You want to mention the insecticides that you use, just the name of the insecticides, that's also fine with me. See, लोगों को कुछ गिव अवे मिल जाए। I'll tell you the insecticides which are approved for termite treatment are 4, out of which 3 are there in the BIS code also. The 4th one is going to come maybe in a year or whenever the next revision takes place. So one is chlorpyrifos, which is the least desirable one as far as I am concerned. One, it has a lot of smell. Second, as I told you about the pH factor. So that is the one where you have a problem. The next one is imidacloprid. That's another chemical which is totally odorless. Then there is the third chemical which is bifenthrin. That again, that has a smell, but the advantage with bifenthrin is that you can mix it with oil, whereas imidacloprid cannot be mixed with oil. So you cannot apply it on wooden surfaces. For that, you will have to use something else which has to be mixed with oil. Then the 4th chemical is fipronil, which is still not there in the BIS code, but it's a very effective insecticide being used worldwide. And that is again mixed with water as well as with oil. And this is a odorless insecticide. तो ये 4 इंसेक्टिसाइड है जो आपको यूज़ करना है। ब्रांड्स आप छोड़ दीजिए, मैं आपको मैन्युफैक्चरर्स के नाम बताता हूँ हु आर गुड मैन्युफैक्चरर्स, दे विल गिव यू consistent, this thing. Why not? So the first one is Bayer, and by the way, Bayer has now been, the Bayer's division which used to make the public health insecticides, that was called Bayer Environmental Sciences, that has been taken over by a company called Envu, ENVU. So that was last year October, 22 October में, तो they are in the process of changing their thing. तो Envu के नाम से जो प्रोडक्ट आते हैं वो they are very good. Then you have a company called Syngenta, which makes very good products. They have few products but excellent products. Then you have FMC India, again a multinational, basically American multinational. They have products which are excellent products. Then you have an Indian company called UPL, United Phosphorus Limited, probably the 5th largest company in the world. A multinational again, Indian multinational. Great products. Then you have Sumitomo Corporation. Again, they do not have any chemical for termite treatment as of now, but their other products for pest control services are really classy products. So these are the companies whom I rely upon. And second thing, see, in these cases, what happens is that there are times when we also need their support. आप किसी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका एप्लीकेशन में कहीं कमी कर रहे हैं तो फिर वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा सोल्यूशन। So you need to have that backup support. So these companies, they give you the backup support also. They give you the requisite training, they give you the requisite dosages, they give you the hand holding, they basically tell you what the product, how it's going to be most effective. So for a person like me, I may not need it, but then there are n number of pest control operators. Yes. And they have the access to the good product, but they may not be knowing how to use it. So that's where the backup helps a lot. You're right. Actually, grassroots पर कहीं ना कहीं चीज़ें ये चाहिए. Not everybody can be a masters in entomology like yourself. I understand that. And you understand the entire science behind it as well. हो सकता है लोगों को उतनी knowledge ना हो, तो at least ये कंपनियाँ वो job कर रही हैं. Great sir, good giveaway. Maybe any last few takes that you think we have missed? Do you think कि ऋषभ यार ये रह गया या हमारे discussion के अंदर ये part कुछ missing रह गया? देखिए 2-3 चीज़ें जो मैं छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो जब हम डैमेजेस की बात कर रहे थे तो एक चीज़ और मेरे ध्यान में आई थी, विच आई रिमेंबर्ड। मैंने बताया आपको फॉल सीलिंग नीचे गिर जाती है और पैनल में लग जाती है, जो आप चीज़ें देखी आपने। टर्माइट्स के कारण फ्लोर भी धंस जाता है। What? Yes. Concrete floor. Concrete floor. जयपुर में एक थिएटर है जेम के नाम से, वेरी ओल्ड थिएटर, एंड वी गॉट अ कॉल सेइंग दैट वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ टर्माइट्स, आप जरा देखिए इसको। तो वी हैव अ ब्रांच इन जयपुर, तो हम लोग गए थे देखने। तो वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड वाज व्हेन आई वेंट इनसाइड, तो उनका
आगे फॉयर बोलते हैं, जो रिसेप्शन लॉबी या फॉयर वट एवर यू कॉल इट, देयर द लेवल ऑफ द फ्लोर वाज अ लिटिल डाउन एज कम्पेयर टू द मेन बिल्डिंग जो ओके अंदर जा गए थे। ओके तो मैंने उनसे कहा कि ये डिफरेंस है। उन्होंने कहा सर ये ना धीरे धीरे हुआ है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? देन वी वर आस्क्ड टू ड्रिल होल्स ओवर देयर, एंड देन मोमेंट वी ड्रिल्ड होल्स, तो हमें पता लगा कि सॉइल जो है अंदर इतनी लूज हो चुकी है बिकॉज ऑफ द टर्माइट मूवमेंट कि वो फ्लोर नीचे गिर रहा है। So this can also happen due to termites. This is one thing I wanted to tell you. Second was basically कि This was an old construction probably. very old construction, must have been 30-40 years old construction, but then this can happen. Yeah, but आजकल वो reinforced वाले स्ट्रक्चर के अंदर शायद ये फिर भी ना हो, क्योंकि reinforcement. एक बात सोचें कि एक तो पुरानी बिल्डिंग्स आज भी खड़ी ही है ना। बट आपकी बात तो सही है, अगर नीचे के सॉइल में ही मूवमेंट हो गई तो मेरा तो बिल्डिंग का लेवल नीचे जाएगा ना. एक दूसरा कि प्लीज़ जब भी आप कहीं पे भी, मैं वापस अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ इस बारे में, कि आप किसी भी पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हो तो उसको अपने घर में जहर फैलाने के लिए बुलाते हो तो बड़े ध्यान से बुलाइए, ठीक बात है. बहुत अच्छे से उसका वो देखिए। एक उसके लिए एक थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ। देर इज़ अ एसोसिएशन वी हैव, वी कॉल इट इंडियन पेस्ट कंट्रोल एसोसिएशन। इट्स एसोसिएशन अबाउट 400 odd members, maybe 500 now, all over the country. So we have very strict benchmarks of membership. Okay. So उनके पास में लाइसेंस होना चाहिए, they need to have that training, they need to have so many things. So we before getting them into our fold, we ensure वो background check पूरा होता है, Yeah. so as to ensure कि हाँ यार we are getting quality members. So that is one thing you can also find out if you are a member of IPCA IPCA. approved या उसके member IPCA आप हैं member तो. हैं क्या आप? That will give you some sort of assurance again. Very interesting. और वो चेक कैसे होता है मेंबरशिप तो का? मेंबरशिप का सर्टिफिकेट कि होता एक है आईडी आपके होती पास। होगी या कुछ एक वो रहता होगा ए, सर्टिफिकेट. भाई वो अगर आपने मेंबरशिप ली है तो आपका विजिटिंग कार्ड पे भी आप लिखेंगे IPCA मेंबर। इट्स अ प्राउड थिंग। That helps. That helps. This is a brilliant giveaway, sir. सर, हो सकता है कुछ लोगों के कुछ सवाल हों जो शायद मैंने कवर ना किए हो, किसी के मन में कोई ख्याल आया हो. I will route those questions to you. I will try to connect those individuals to you directly. Maybe they can actually take those answers from you. So this was Mr. Ravi Vyas. He has been in this industry for more than 50 years now. He knows what he's talking about. He has a master's in entomology. He knows the behavioral dynamics of termites and insects in general. That is where the science, that is where the logic comes in which he basically uses his expertise to deal with termites in the anti-termite treatments and in other pest controls. If you have any questions for him, please write to me at buildmatepodcast@gmail.com. You can follow me on Instagram at buildmatepodcast. YouTube पर हमारा जो हैंडल है वो भी at buildmatepodcast है. Follow us there, subscribe to our channel. Thank you for listening in. Have a great day.
कहाँ रहते हैं आप?